So namaskaram and good morning all. Let's start with the today's chapter. Today's chapter is agriculture income, taxation of agriculture income. So let's start with my handwritten notes first of all. I hope everyone have received the handwritten notes. So exempt income. So what do you mean by exempt income? Income which do not form part of total income is known as exempt income. I have divided this whole chapter into three parts: part A, part B, part C. टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज वन ऑफ द कोर ऑफ द सिलेबस. ये कोर है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे देश को ही बोला जाता है इट इज एग्रीकल्चर ड्रिवन नेशन. ठीक है ना. हमारे देश में से जो मैक्सिमम चीजें एक्सपोर्ट होती है दे आर समहाउ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एंड यू नो दैट मेनी ऑफ योर पेरेंट माइट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. तो आज एग्रीकल्चर के बिना हम लोग का सर्वाइवल खतरे में आ जाता. So definitely we have to encourage agriculture in the country. Apart from that, farmers have always been, looked as one of the persons who has not lived the life the way the city people are living. Okay, they are always having some struggles in their life. कुछ ना कुछ उनके लाइफ में प्रॉब्लम चलते रहता है. कुछ इश्यूज होते हैं, कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी कम होती है. तो obviously you have to give some kind of encouragement to the farmers to enter into agriculture. तो इनकम टैक्स ने इतना मोटिवेट किया that after becoming chartered, even I started dreaming about becoming farmer, and therefore I shifted. That's one of the reason I shifted my base from Mumbai to my native place Kolhapur. And from here I'm taking some lessons of agriculture. I'm looking at agriculture cycles. I'm looking at the nature very closely, because in Mumbai we don't see the nature. We are working all the time in the offices, so we don't know whether outside it is the winter or summer or monsoon. Here every day matters. Here every day summer matters. Here winter matters. Here monsoon matters. Level of monsoon matters. तो क्रॉप्स का साइकिल कितना होता है, शुगर केन का साइकिल कितने दिन का होता है, चिलीज का साइकिल कितने दिन का होता है. तो ऑल दिस थिंग्स I have started learning, and hopefully one day I will become a successful farmer, and I'll be proudly introducing me. This is Ram Patil, a chartered accountant by qualification and farmer by a passion. तो अच्छा लगेगा फार्मर बनने के लिए. Apart from that, how I got a dream of becoming farmer. So I used to roam in Kerala a lot. ठीक है ना. केरला में मैं बहुत घूमता था. This part of the Kerala. This is the mid part of the Kerala which is known as the Kottayam. Okay, Kottayam करके एक जगह है केरला में. वहां पे एक दिन स्ट्राइक डिक्लेयर हो गया. Okay, and once the strike is declared, there was a student who took me to the farm. Okay, एक फार्म पे लेकर गए वो लोग मुझे, जो मुनार के आसपास था. Okay, there is a very famous hill station from Kerala, मुनार. तो मुनार के यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर फार्म को एक विजिट करने चले गए. यू वोंट बिलीव दैट पर्सन हु हैड रिसीव्ड अस देयर was having all the luxurious car. अब नाम लो, you name the car and he will be having that particular car. BMW, Mercedes, whatever you can think about, he already have. Apart from that, when he started showing me the farm, कि चलो सर फार्म देख लेते हैं, तो he started showing me mountains, कि ये माउंटेन पे हम लोग कोको लगाते हैं. कोको मतलब जिसमें से आपका अपना चॉकलेट का पाउडर जिससे बनता है, उसकी जो सीड्स होती है वो कोको प्लांट्स लगाते हैं. दूसरा एक उसके बाजू में माउंटेन था जिसके ऊपर वो लोग कॉफी प्लांटेशन करते थे. उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो वो लोग कार्डमम, इलायची जिसको हम बोलते हैं, कार्डमम का प्लांटेशन किया था. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने वहां पे लगाया था ब्लैक गोल्ड. केरला में इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है. ब्लैक गोल्ड मतलब अपना जो हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक पेपर जिसको आप बोलते हो ना, क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर को, क्या बोलते हैं, काली मिरी. हाँ, काली मिरी आप जिसको बोलते हो, जो बिरयानी में आती है तो अच्छा नहीं लगता अपने को. ठीक है ना. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स में ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहां पे रेवेन्यू भी ज्यादा है. तो ये जो फार्मर है ना, ही वाज करोड़पति अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, एंड ही वाज वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ. इतने खुश थे ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, वन ऑफ द सीन दैट ही हैड अ फार्म हियर, ही हैड अ फार्म देयर. ठीक है ना. ऐसे दो माउंटेन के बीच में इसका फार्म था. यहाँ से रिवर फ्लो होता है. ओके, एंड हियर ही इज हैविंग स्मॉल वाटरफॉल. ऑब्वियसली जब ये वाला माउंटेन भी उसी का है, ये वाला माउंटेन भी इसी का है, यू कैन कॉल दिस एज अ प्राइवेट वाटरफॉल. ओके, तो ये उसकी लैंड के अंदर एक वाटरफॉल भी है. तो इस टाइप का फार्मिंग उन्होंने कल्टीवेट किया था. अमेजिंग इट वाज. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगा यार, मुझे नहीं लग रहा कि ओनली बाय रिमेनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल बिकम व्हाट आई वांटेड टू बिकम. तो therefore I developed my interest into farming. This is the one reason why I developed my interest into farming. I understood a farming can change your life, not only your life,
a life of future generations to come, a life of people around you, and life of everybody will be changed drastically if you enter into a systematic farming. ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सिस्टमैटिक फार्मिंग करना पड़ेगा. You have to study, you have to hire people, you have to get the right people in your team, you have to conduct some kind of research. It cannot be a quick business कि चलो आज चालू किया 2 दिन बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा, 2 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा. Sometime you may get result after 5 years time, after 8 years time. So you need to have a patience when you are entering into agriculture, and I have shifted here with a lot of patience. Second encouragement to start a farming or to think about farming was, when I'm talking about income tax is fully exempted. बाप रे, fully exempted. और क्या चाहिए बोलो, अगर मैंने फार्मिंग में 100 लाख भी कमाया तो पूरा 100 लाख मेरा, because even 1 rupee tax will not be levied on agriculture income. 1 रुपए का टैक्स नहीं है इसके ऊपर. और क्या चाहिए इतने, इससे ज्यादा इंकरेजमेंट क्या चाहिए? 1000 करोड़ होगा तो 1000 करोड़ एग्जाम, 2000 करोड़ होगा 2000 करोड़ एग्जाम, 10,000 करोड़ होगा 10,000 करोड़ एग्जाम. अब कितना कमाना चाहते हो उतना कमाओ. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम की इसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, तो फुल्ली एग्जाम. तीसरा इंकरेजमेंट, जीएसटी लॉ में देयर इज नो जीएसटी ऑन एग्रीकल्चरिस्ट. जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो कल्टीवेट करते हैं, उनके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगता. मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, नाइदर इनडायरेक्ट टैक्स नॉर डायरेक्ट टैक्स, दोनों में मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो टैक्स कंप्लायंस विल बी जीरो, प्योर इनकम. एंड टू बिकम अ फार्मर यू डोंट हैव टू बी हाईली क्वालिफाइड पर्सन. तो मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग एकेडमिकली इतने सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर वेरी मच एक्टिव. तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को 2 टीम में डिवाइड करना है. मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है आपको कभी तो दिखाऊंगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे होगा भी. हाँ, ये देखो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो जो है, पहला वाला ब्लू है, एलिट है, और दूसरा वाला गुरुकुल है. तो दे आई हैव टू डिवाइड माय होल टीम, जो मेरे पास लोग आज काम करते हैं, इनटू ब्लू टीम एंड ग्रीन टीम. एक ब्लू होगा और एक ग्रीन होगा, ठीक है ना. ब्लू टीम जो होंगे ना, वो लोग वो करेंगे, वो चीजें लाइफ में करेंगे जो एकेडमिक एक्सेलेंस उनके पास है. They can become CA, CMA, CAS, advocate, whatever they wanted to pursue. They can become a professional and they can achieve the academical excellence. और जो ग्रीन टीम में होंगे, उनका और एकेडमिक्स का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है. वो लोग मतलब पढ़ाई में ज्यादा आगे भी नहीं गए रहेंगे, इंग्लिश भी नहीं बोलने आता होगा. आई एम फाइन विद दैट. We are going to enter into farming. We are going to enter into rural tourism. तो यहाँ पे tourism के business वगैरह हम करेंगे. We are going to enter into some kind of manufacturing activities, food processing को हम बात करें आगे जाके. तो वहां पे मुझे academics नहीं चाहिए, वहां पे मुझे मेहनती लोग चाहिए, ठीक है ना, जो efforts डालने के लिए रेडी है. ऑफिस में काम करने वाले लोग अलग होते हैं, फार्म में काम करने वाले लोग अलग होते हैं. तो therefore I have to divide my team into these 2 teams. एंड ये 2 लोग अलग अलग टाइप का काम करेंगे. ये लोग स्ट्रैटेजिक काम करेंगे, ये लोग एग्जीक्यूशन वाला काम करेंगे. तो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग माय फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन. तो द चैप्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, एग्रीकल्चर इनकम, is no more a theoretical chapter for me. Obviously 2 years back it was a theoretical chapter for me and I did not develop any interest into it. But last 2 years, by looking into agriculture very closely, I understood, yeah, this is something I wanted to do in my life. Because see, सीए बनना था, सीए बन गया. इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना था, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया. सीए फर्म चालू करनी थी, सीए फर्म चालू कर दी. सो व्हाटएवर यू विश टू हैव इन योर लाइफ एज ऑफ नाउ, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल दोस थिंग्स. So if I wanted to make my life more exciting and more challenging, then I have to look at something new, something exciting and something sustainable. Sustainable मतलब सर, जैसे आज लॉकडाउन आता है तो एजुकेशन इंडस्ट्री पूरा का पूरा डाउन हो चुका है. लास्ट 2 years से मैंने फेस टू फेस लेक्चर ही नहीं लिया हुआ है. एंड फेस टू फेस लेक्चर का जो मजा था, वो अभी वो कैमरा को देख के बोलने में वो मजा नहीं आता. तो ऑब्वियसली आवर एफिशिएंसी, आवर वे ऑफ टीचिंग, आवर वे ऑफ डिलीवरिंग हैव चेंज्ड सब्सटेंशियली ड्यू टू दिस लॉकडाउन. ठीक है. और मॉनेटरीली भी मेरा जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली 1/5 हो गया है. आई यूज्ड टू अर्न, अगर मैं 25 लाख रुपया कमाता था टीचिंग में से, तो राइट नाउ आई एम अर्निंग ओनली 5 लाख रुपीस अप्रॉक्सिमेटली, दैट टू थैंक टू द ऑनलाइन कोचिंग्स. तो ऑनलाइन कोचिंग्स में से कम सर्वाइवल का पैसा मिल जाता है. तो एजुकेशन सेक्टर मे नॉट बी सस्टेनेबल. ठीक है ना, इसको सस्टेनेबल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जैसे कोविड आया वैसे कुछ ना कुछ फ्यूचर में भी आते रहेगा. लेकिन कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, भले रिसेशन आए, इन्फ्लेशन आए, कोविड जैसा कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लोग फूड कंजम्पशन कम नहीं करेंगे. And therefore I wanted to associate directly or indirectly with food industry,
और वो भी फूड सप्लाई, रिटेल, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से अच्छा डायरेक्टली कल्टीवेटर बन जाओ, ताकि गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारे बेनिफिट दे दे. There are so many hundreds of subsidies available for farmers, hundreds of schemes available to the farmers. Only thing is that farmer doesn't know how to search it, farmer doesn't know how to implement it. There are very few farmers, handful farmers होंगे. In Maharashtra में अगर मैं बात करूँ, there might not be more than 500 farmers, maximum 500 farmers who might have taken the benefits from the government subsidies, and they have flourished their business. आप अभी देख सकते हो बहुत सारे न्यूज चैनल पे आता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आता है. He was an engineer working in MNC, then he left the job, he started the farming with 2 acre land, और now he is earning 10 lakh rupees. ऐसा कुछ ना कुछ स्टोरीज आपको पढ़ने मिलता है. So that is very nice. आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड रहोगे, why I'm telling you, because I know I'm addressing to the rural India of Maharashtra और rural Maharashtra. तो रूरल रीजन को एड्रेस करने से आप लोगों को अगर फार्मिंग में हो ऑलरेडी, आपके पेरेंट्स अगर फार्मिंग में हैं, तो do not hate farming, do not hate agriculture. It can convert into a fruitful business, and your life may change if you look at it with a different perspective. ठीक है ना, खाली पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है. हाँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा है डेफिनेटली. इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दे दो, रोज 9 से 5, 10 से 5 जॉब कर लो, सैटरडे संडे ऑफ. वैसा वाला लाइफस्टाइल फार्मर का नहीं होता. फार्मर हैज टू वर्क 365 डेज, समटाइम डे एंड नाइट बोथ. उनको काम करना पड़ता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इट. एवरीथिंग यू डोंट हैव टू डू इट, नो, यू कैन एम्प्लॉय लेबरर्स. तो वो सारी बातें यहाँ पे होती है. तो फार्मिंग इज अ वंडरफुल गेम. इफ यू विश टू एंटर इनटू फार्मिंग, यू डेफिनेटली एंटर. और ट्रेनिंग अगर चाहिए रहेगी तो हमारे पास आ जाना, हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे. वी आर ऑलरेडी गेटिंग लर्निंग, क्योंकि ना राइट नाउ आई एम एन आर्टिकल ऑफ फार्मर. तो मैं जाता हूँ फार्म पे, कभी भी टाइम मिलता है तो. मेरे टीम में 1-2 लोग हैं, महीने में 2-3 बार तो फार्म में काम करके आते ही है. तो लेट्स स्टार्ट. सर, तो एग्रीकल्चर इनकम 2 टाइप का होता है. टैक्सेशन की बात करेंगे अभी. एग्रीकल्चर इनकम दो टाइप का होता है, फ्रॉम लैंड इन इंडिया और फॉरेन लैंड. जल्दी बोलो, लैंड इन इंडिया क्या टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? Exempt. फुल्ली एग्जम्प्ट. और फॉरेन लैंड? फुल्ली टैक्सेबल. तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन लैंड फुल्ली एग्जम्प्ट, फॉरेन लैंड फुल्ली टैक्सेबल. नाउ थिंक, अभी कल का चैप्टर के बारे में सोचो. अगर लैंड फॉरेन में है, ओके, अगर लैंड फॉरेन में है, देन व्हाई इंडिया इज सेइंग फुल्ली टैक्सेबल? ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस है जहां पे फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड भी इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है? क्रॉप्स फ्रॉम फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड इज टैक्सेबल इन इंडिया. ऐसे क्या सिचुएशन होंगी? आर यू गेटिंग दिस? अरे आपका जमीन पाकिस्तान में है, आपका एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में होता है, इनकम रिसीव्ड इन पाकिस्तान, इनकम अक्रूड इन पाकिस्तान. आप इंडिया में टैक्स कर रहे हो, क्यों टैक्स कर रहे हो? ऐसा क्या है? जो पर्सन है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. वेरी गुड. जो असेसी है ना सर, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है, तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है. दिस इज वन सिचुएशन. देयर इज वन मोर सिचुएशन. एक और पॉसिबिलिटी है. अगर ये लैंड का जो इनकम है वो अक्रूड पाकिस्तान में हुआ है और रिसीव्ड डायरेक्टली इंडिया में हुआ रहेगा. याद आ रहा है क्या कल की बात? रिसीव्ड इन इंडिया. भले ये अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर ये रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा तभी भी ये टैक्सेबल होगा. तो फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड का इनकम ये 2 सिचुएशन में ही टैक्सेबल होता है. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. सर, एग्रीकल्चर लैंड का और एक एग्जांपल, बहुत सारे केसेस में, हमारे खास करके हमारे महाराष्ट्रियन केसेस में, मेरे रीजन में भी और आपके रीजन में भी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स का समझो 10 एकड़ का लैंड है गांव में, ठीक है ना. ग्रैंड पेरेंट्स का है, पेरेंट्स का है, फैमिली का, एंसेस्टर्स का लैंड है, 10 एकर्स का लैंड है. लेकिन पापा को मुंबई में जॉब करना है, तो ही विल लेफ्ट दिस पर्टिकुलर लैंड एंड ही विल कम टू मुंबई. ही इज वर्किंग इन मुंबई नाउ. he is having job, he is earning a salary income. Obviously salary income is taxable. लेकिन गांव में जो 10 एकड़ का लैंड है ना, वो उन्होंने ऐसे एम्प्टी नहीं रखा हुआ है. वो किसी फार्मर को, लोकल फार्मर को दे दिया कराने के लिए. हम बोलते कि हाँ, लैंड तालुकाना दिल्ली लिया है, ओके, हैंडेड ओवर, वी हैव हैंडेड ओवर द लैंड टू द सम लोकल फार्मर. एंड देयर विल बी द 2 टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन. या तो पापा को मॉनेटरी रेंट मिलेगा, या तो काइंड में रेंट मिलेगा. सर, काइंड में मतलब
जो भी अभी ये लैंड का कल्टीवेशन है उसका 40% मिलेगा, ऐसा कुछ तो रेशो डिसाइड होता है उनका, 50-50, 60-40, 25-75, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशन, वो सारी बातें होती है। तो जो यहाँ पे कल्टीवेटर है वो कल्टीवेट करेगा, और वो कल्टीवेट करने के बाद उसमें से या तो पैसे कमाएगा और आपके पापा को पैसे देगा, या तो कल्टीवेशन का 40% दे देगा। तो मुझे बताओ, जो रेंट आपके फादर ने कमाया हुआ है, रेंट आपके पेरेंट्स ने जो कमाया हुआ है, इज इट एग्रीकल्चर इनकम? Yes. जल्दी बोलो। पेरेंट्स अभी मुंबई में जॉब कर रहे हैं, उनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने खाली जमीन भाड़े पे दी है। यहाँ पे जो फार्मर है वो काम करके मेहनत करके पैसे कमा रहा है, उसमें का एक कंपोनेंट रेंट दे रहा है। इज इट अ एग्रीकल्चर इनकम? बाकी लोग भी रिप्लाई दो प्लीज। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, क्या लगता है आप लोगों को? रेंट टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्रीकल्चर बोल के एग्जम्प्ट होना चाहिए? exempt. तो इसमें दो सिचुएशन है, ठीक है ना? देयर आर टू सिचुएशन इन दिस। अगर ये जो रेंट उन्होंने कमाया हुआ है ना, ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एंड आता है उसमें एक फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी जो की है ना वो भी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। अगर ये दोनों है, एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो ही ये एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर एग्रीकल्चर लैंड आपने मूवी शूटिंग के लिए दिया, ठीक है ना, या रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनाने के लिए दिया, या कोई और पर्पस के लिए दिया जो एग्रीकल्चर नहीं है, तो फिर ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो ये दो सिचुएशन आप याद रखो प्लीज। एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फुल्ली एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर लैंड, अभी कोई मूवी शूट करना था, उसमें उनको एग्रीकल्चर फार्म दिखाना था, तो दे कम टू योर फार्म एंड उन्होंने आपके पापा को एक महीने का 5 लाख रुपए का रेंट दिया, तो ऑब्वियसली वो जो रेंट है वो दैट इज नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस से नहीं दिया गया, इसलिए उसको फुल्ली टैक्सेबल करेगा गवर्नमेंट। ओके, आपको पता है कि मेरे रीजन में जहां पे मैं हूं अभी ना, वहां पे ना बारिश बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे हेवी रेन होता है। तो फार्मर्स के लिए ना ऐसे फ्लावर्स के आउटपुट लेना, या ग्रेप्स का आउटपुट लेना, या स्ट्रॉबेरीज बनाना, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हेवी रेन बहुत ज्यादा होता है। गर्मी में गर्मी ज्यादा होती है, बारिश में बारिश ज्यादा होती है, और ठंडी में ठंडी ज्यादा होती है। एवरीथिंग इज एक्सट्रीम हियर बिकॉज दिस फॉल्स इन अ वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, माउंटेन एरिया आता है, हिली एरिया जाता है। अभी तो मेरा क्या मानना है ना, ये फार्मर्स को अगर यहाँ पे सरवाइव करना है, तो दिस इज माय सजेशन, आई डोंट नो वेदर इट इज वर्केबल और नॉट, वी हैव टू स्टार्ट विद सम फार्मर। कोई फार्मर अगर रेडी होता है, तो मैं अपने फार्मर्स को बोलने वाला हूँ कि हमें आपका फार्म मैनेज करने के लिए दे दीजिए। अगर आपका 10 एकड़ का जमीन है, 5 एकड़ का जमीन है, या मिनिमम 2.5 एकड़ का जमीन है, जिसको हम 1 हेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, 1 हेक्टर का जमीन मिनिमम अगर आपके पास होगा, 1 हेक्टर का लैंड अगर आपके पास होगा, तो मैं उनको कुछ ऐसे, अभी क्या हमारे फार्मर क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ के फार्मर शुगर केन लगाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ के फार्मर शुगर केन ही क्यों लगा रहे हैं? तो मैंने अपने अंकल से एक बार बात किया, व्हाई यू प्रोड्यूस ओनली शुगर केन, व्हाई नॉट एनी अदर थिंग? तो उन्होंने बोला क्योंकि उनके पापा, मतलब हमारे दादाजी, वो भी शुगर केन ही लगाते थे, ठीक है ना। तो मैंने बोला दादाजी शुगर केन क्यों लगाते थे? तो उनके पास कोई खास आंसर नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली दादाजी के पापा, मतलब जो परदादा है, वो भी शुगर केन ही लगाते थे। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुगर केन लगाया, तो ग्रैंडफादर ने भी शुगर केन ही लगाया, तो जो अभी जो हमारी जनरेशन के ऊपर की जनरेशन है, फादर वो भी शुगर केन लगा रहे हैं। और ऑब्वियसली जो मेरा असेसी होगा, जो मेरा टारगेट असेसी, जो यंग जनरेशन है, हमारे लेवल के लोग हैं, वो लोग भी शायद आगे जाके शुगर केन ही लगाएंगे, बिकॉज दे अंडरस्टूड ओनली शुगर केन का कल्टीवेशन। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद शुगर केन एक्सेप्ट वन और टू, यू शुड से। एक तो शुगर केन में ना, यहाँ पे वो वाइल्ड बुल जो होता है ना, इफ यू हैव हर्ड गहू रेडा, आई डोंट नो, लाइक पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो वाइल्ड बुल्स आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं। अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, तो यहाँ पे एलिफेंट्स और वाइल्ड बुल, ये दोनों हमारे फार्म में आते हैं। और ये एक दिन भी अगर आते हैं ना, एक रात को भी आते हैं, तो ये जो पूरा शुगर केन का फार्म है ना, पूरा वो स्पॉइल कर सकते हैं। दैट्स देयर कैपेसिटी। दिस इज वन रिस्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, शुगर केन टेक्स मिनिमम 14 to 16 मंथ टू गिव यू द कैश बैक, ठीक है ना। इसका लाइफ साइकिल जो है वो 14 to 16 मंथ का है। मतलब मैं आज कल्टीवेट करूं, मुझे 14 मंथ वेट करना पड़ेगा, 14 मंथ मतलब एफर्ट डालने पड़ेंगे उसमें से पैसे निकालने के लिए। तो आई डोंट हेट शुगर केन, ओनली थिंग इज दैट आई वांटेड टू टेल द फार्मर व्हाई ग्रैंडफादर
और व्हाई ग्रेट ग्रैंडफादर स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, क्योंकि तभी बेचने लायक एक ही प्रोडक्ट था, वो था शुगर केन, क्योंकि फैक्ट्री जो थी वो नियर बाय एरियाज में होती थी। शुगर केन की फैक्ट्री जो होती थी वो आजू बाजू के एरिया में होती थी, तो ये लोग शुगर केन बैलगाड़ी पे डाल के, बुलक कार्ट पे डाल के वहां पे जाके देते थे और उनको वहां पे भी पैसे मिलते थे। उस टाइम पे कंक्रीट रोड नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, ट्रक्स नहीं हुआ करते थे, तो उनके पास कोई सोर्स नहीं था कि वो अपना माल मुंबई, पुणे, गोवा, ऐसे कर्नाटका के जो बॉर्डर्स एरिया है, बेलगावी वगैरह, वहां पे पहुंचा पाएंगे। देयरफॉर माय ग्रेट ग्रैंडफादर स्टार्टेड कल्टीवेटिंग शुगर केन। लेकिन अगर आज मैं मार्केट में डिमांड देखूं तो यार कैप्सिकम का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हम जिसको धनिया बोलते, कोथिंबीर, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अपना जो अदरक है, गार्लिक है, ठीक है ना, जिंजर है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, अनियंस का डिमांड बहुत ज्यादा है, जो पल्सेस होते हैं उनका डिमांड ज्यादा है। तो ये लोग एग्रीकल्चर स्विच करने के लिए रेडी नहीं है मेंटली, उनको जो आता है वो लोग वही करते हैं। तो मेरा उनको सजेशन रहेगा फार्मर्स को, अगर मेरे हाथ में अगर किसी ने फार्मिंग दे दिया ऑन अ ट्रायल बेसिस, आपके लैंड का एक इतना पार्ट अगर आप मुझे ट्रायल बेसिस पे करने देते हो, तो व्हाट आई विल टेल देम कि यहाँ पे हम ना मल्टी लेयर फार्मिंग करेंगे। मल्टी लेयर फार्मिंग मतलब हम कम से कम एक लैंड में कम से कम 3 से 5 प्रोडक्ट लेंगे। एक प्रोडक्ट जो होगा वो जमीन के अंदर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, जैसे पोटैटोज वगैरह होते हैं जमीन के अंदर जाते वो लोग। एक जो होगा वो सरफेस ऑफ द सॉइल पे लगेगा, और उस पे भी 2 प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, एक आपको पूरा का पूरा लैंड आपको पॉव करके मतलब डिवाइड करना पड़ता है, ऐसे बांध बनाने पड़ते हैं, आप लोगों ने अपने यहाँ पे देखा होगा। तो एक प्रोडक्ट इस यहाँ पे लगेगा और एक प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रखा है वहां पे लगेगा। तो सॉइल पे 3 प्रोडक्ट लगेंगे, अंडर द सॉइल, ऑन द सॉइल, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल 2 प्रोडक्ट लग गए। यहाँ पे बांबू करके, बांबू लगा के, बांबू के ऊपर एक प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऊपर शेड बना के इसके ऊपर एक प्रोडक्ट। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हमको करने, इसको मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं। तो दिस इज वन आइडिया दैट आई वांटेड टू शेयर विद द फार्मर। इसमें खाली हमें देखना पड़ता है कि ये जो क्रॉप्स लगाए वो फ्रेंडली क्रॉप्स होने चाहिए। दैट मीन दे शुड नॉट बी किलिंग ईच अदर, दे शुड नॉट बी कंपीटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग क्रॉप्स होने चाहिए। खाली उतना स्टडी करके उनके लैंड में क्या पॉसिबिलिटीज है, उसका सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग करके ये करना है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि फार्मर्स के पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाए। फार्मर्स के पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मतलब मैं चाहता हूं कि फार्मर गोट फार्मिंग भी कर ले, ठीक है ना, गोट फार्मिंग भी कर ले, ताकि अगर वो गोट रखता है, जैसे आज बकरी ईद है, तो गोट्स का डिमांड सीजनल होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है सडनली, ठीक है ना। तो गोट्स का अगर वो गोट फार्मिंग करता है तो उससे 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो उसके पास जो ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह वो लगाते हैं, उसका जो वेस्टेज यूजुअली हो जाता है, दैट कैन बी कंज्यूम बाय दिस गोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गोट का जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर निकलेगा, खाद जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वेरी मच हेल्दी फॉर द प्लांट्स। तो इनपुट आउटपुट दोनों हमारा यूजफुल हो जाता है। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि फार्मर जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग भी करे, फार्मर जो है वो डेयरी फार्मिंग भी करे, फार्मर जो एक छोटा सा पॉन्ड बनाए, 4 गुंटा 5 गुंटा मतलब 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में, ठीक है ना, और वहां पे फार्मर फिश फार्मिंग भी करे। और ये सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ब्यूटीफुली कनेक्ट किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को क्या पूछ रहा हूं, ये वाला जो मैंने बताया ये डेफिनेटली एग्रीकल्चर है, लेकिन गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, क्या ये भी एग्रीकल्चर है? क्या ये एग्रीकल्चर है? इज इट एग्रीकल्चर? प्लीज बोलो। इसका जो इनकम आएगा, इनका ये टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये टैक्सेबल है क्योंकि ये कोर एग्रीकल्चर नहीं है। तो हमारे फार्मर्स को एक मिसकंसेप्शन है कि मैं कोई भी इनकम कमाऊं ना वो एग्जम्प्ट, ऐसा फार्मर को लगता है। ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है भैया अगर आप कल्टीवेट करोगे ना, मेहनत करके जो पैसा कमाओगे ना, वही एग्जम्प्ट होता है। ये जो एडिशनल इनकम आप कमाते हो ना, ऑब्वियसली इसमें भी मेहनत लगता है, एफर्ट्स लगता है, लेकिन ये फार्मर नहीं भी होते ना तभी भी ये कर सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग चलाने के लिए आपको फार्मर होना जरूरी नहीं होता। तो इन्होंने बोला ये जो एडिशनल होता है ना उसको आपको टैक्स करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कोई टैक्स भर नहीं रहा है, कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तक इसका इतना स्ट्रांगली नहीं किया गया। इसके अलावा यू नीड टू नो वन थिंग वेरी मच क्लियरली हियर, ये जो फार्मर्स होते हैं ना, ये ना यहाँ पे एक फार्म हाउस भी बनाते हैं।
मतलब जमीन होता है तो एक फार्म हाउस भी होता है। अब ये फार्म हाउस अगर इमीडिएट विसिनिटी में होगा, इमीडिएट विसिनिटी मतलब या तो लैंड पे होगा या लैंड के बाजू में होगा, तो इसको हम फार्म हाउस बोलते हैं। हम वो मूवी एक्टर्स का फार्म हाउस की बात नहीं कर रहे जिसमें स्विमिंग पूल है, जैकूजी है और ग्रिल एरिया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फार्म, ठीक है ना। फार्म हाउस मतलब शायद जो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें लाइट कनेक्शन भी नहीं होता, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी नहीं होता, फ्लोरिंग भी जो होती है वो मड की होती है, उसमें कोई टाइल्स वगैरह मार्बल नहीं लगाए होते। तो फार्म हाउस बनाया क्यों जाता है सर? ऑब्वियसली जो फार्मिंग इक्विपमेंट है वो रखने के लिए, और अगर उनके एनिमल वगैरह है तो उनको बांधने के लिए, और बारिश बिरिश के दिनों में यार फार्मर बैठेगा, खाएगा, खाना पीना कहाँ खाएगा, चाय वगैरह कहाँ बनाएगा, तो उसके लिए वो फार्म हाउस बनाता है। यूजुअली फार्मर खुद उस फार्म हाउस में यूजुअली स्टे नहीं करता, ही स्टेज इन विलेज, ठीक है ना। जो विलेज होता है वहां पे उसका, जहाँ पे प्रॉपर हाउस होता है वहां पे वो स्टे करता है। फार्म हाउस इज द बैकअप हाउस जो बनाया जाता है। एंड कोविड की सिचुएशन में फार्म हाउस वाज बेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत सारे फार्मर्स को जो क्वारंटाइन करना पड़ता है तो दे आर गेटिंग क्वारंटाइन इन देयर फार्म हाउसेस। अगर फार्म हाउसेस नहीं होते तो क्वारंटाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये बात लिखी गई है कि इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस जो एग्रीकल्चर लैंड को कनेक्टेड है विसिनिटी में और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो ऐसे नहीं कि खाली एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है, उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है वो भी इन कंबाइंड एग्जम्प्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ द ऑपरेशंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया सर? मैंने डेफिनेशन पढ़ानी थी आप लोगों को। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। क्यों नहीं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन पावर ही नहीं दी है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली टैक्सेबल। आईएफओएस करके भी हो सकता है, पीजीबीपी करके भी हो सकता है। अगर आपकी कोर एक्टिविटी तो पीजीबीपी, एडिशनल इनकम है तो आईएफओएस। कंपोजिट के बारे में थोड़े टाइम के बाद बात करता हूं मैं। सर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देख लो। रेंट एंड रेवेन्यू, देखो रेंट मतलब कैश वाला वो पैसा, ठीक है ना, 20,000 रुपया पर एकड़, 10,000 रुपया पर एकड़, वो कैश, वो रेंट। रेवेन्यू मतलब वो 40% 30% शेयर फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम derived by such land by agriculture or performance of the process ordinary employed by the cultivator। तो जो बेसिक प्रोसेस होती है उससे आपको जो इनकम आता है उसको एग्रीकल्चर बोलेंगे। रिसीवर ऑफ रेंट इन अ काइंड टू रेंडर अ प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन इनटू द मार्केट। चलो ठीक है, मार्केट के लिए अगर आप लेके जा रहे हो तो प्रोडक्ट, अगर आप मैंगो बना रहे हो तो मैंगो को आप पेटी में पैक करोगे तो वो भी सर प्रोडक्ट फिट टू बी मार्केट, टेकन टू द मार्केट किया जाता है। वो वाले प्रोसेस से भी अगर आपने कुछ इनकम कमाया तो एकदम। और फाइनली अपने अपना प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेच के अगर कुछ पैसा कमाए तो वो भी एग्रीकल्चर है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर के। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर गेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बैम्बू, बैम्बू जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है। एक मैं आपको बात बता दूं, ये जो फार्म अगर है ना, ये फार्म आपको फार्म पे ना अगर आपने बाम्बू लगाया और बाम्बू एज अ प्रोटेक्टर काम करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बाम्बू, बहुत अच्छा इनकम भी मिलता है बैम्बूज में से। आप 3 साल में एक बार उसको सेल कर सकते हो, अच्छे प्राइस पे जा सकता है बैम्बू। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, एकदम हल्का फुल्का मेहनत करना पड़ता है, बेयर मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप बाम्बू में से इनकम कमा सकते हो। बाम्बू के साथ साथ क्या हो जाता है ना, यहाँ पे ना कुछ जंगली पेड़ भी उग जाते हैं। जंगली पेड़, ये जंगली पेड़ मतलब ये आपने लगाए नहीं है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज। इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज। अपने लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जंगली पेड़ लग जाते हैं, हम उगाते नहीं उनको, अपने आप उग जाते हैं। मुझे बताओ, ये पेड़ बेचने से जो स्पॉन्टेनियसली ग्रो हो गया था, अगर कोई इनकम होगा तो ये एग्रीकल्चर इनकम है कि टैक्सेबल इनकम है? जल्दी बोलो। स्पॉन्टेनियसली जो पेड़ उगा है ना, ये बेचने से अगर कुछ इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम या एग्जम्प्ट इनकम, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट इनकम? जल्दी बोलो। ये जल्दी बोलो, कोई भी आपका ओपिनियन दे दो, टैक्सेबल होना चाहिए, एग्जम्प्ट होना चाहिए, ओपिनियन दे दो, लॉ नहीं बताओ। Exempt. तो ये फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है क्योंकि ये कल्टीवेट नहीं किया गया है। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, दिस इज नॉट कल्टीवेटेड, ठीक है ना। तो ये क्लियरली यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, किधर तो नॉन एग्रीकल्चर में, किधर तो लिखा होगा। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये देखो लास्ट में देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रोन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट।
तो इसको मैंने नॉन एग्रीकल्चर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चर के एग्जांपल में लिखा हुआ है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन वगैरह वो भी एग्रीकल्चर है। प्लांट सोल्ड इन प्लॉट्स, पॉट्स एंड एग्रो इनकम चलेगा। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी, तो डीम्ड एग्रीकल्चर में आता है। रेम्यूनरेशन, any remuneration received by a partner from a firm engaged in agriculture is an agriculture income. Compensation received from an insurance company for damage caused by hailstorm, क्या बोलते हैं उसको, कोई हरिकेन आ गया, कोई तूफान आ गया, उसकी वजह से आपका पूरा फार्म अगर डैमेज हो गया, उसमें से अगर आपने इंश्योरेंस मिला तो दैट इंश्योरेंस इज आल्सो एग्रीकल्चर इनकम। इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन and denuded plants of the forest after replanting and carrying on subsequent operation। अगर आपने पेड़ लगा के, पेड़ उगा के पेड़ बेचे हैं, मेहनत करके बेचे, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। नॉन एग्रीकल्चर में देखो ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये नॉन एग्रीकल्चर है। पोल्ट्री फार्मिंग नॉन एग्रीकल्चर है। फिशरीज नॉन एग्रीकल्चर है। डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग नॉन एग्रीकल्चर है। Salary received by employee who are working on a farm is non-agriculture income. Dividend received from a company engaged in agriculture operation, non-agriculture income, fully taxable. Income from a salt by flooding the land, तो salt अगर बनाया जाता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, टैक्सेबल इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मनी लेंडर, अगर आपको फार्मर को कोई लोन देके उसमें से जो इंटरेस्ट कमाता है, वो नहीं बोल सकता कि मैं फार्मर से इंटरेस्ट कमा रहा तो मैं एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा हूँ, नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। Profit on standing crops after harvest where such crops acquired through a purchase, अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया किसी कंपनी ने, ठीक है ना, तो फार्मर से उसने स्टैंडिंग क्रॉप परचेस किया हुआ है, मैं एजेंट है, मैंने परचेस किया है, ठीक है ना, या आपका स्टैंडिंग क्रॉप परचेस किया और फिर मैं मार्केट में उसको सेल करेगा, मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं किया, मैं खाली ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ। स्टैंडिंग क्रॉप मैंने परचेस किया और मैंने वो मार्केट में जाके बेच दिया, तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी ना क्या है। रॉयल्टीज फ्रॉम माइंस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम earned by a cultivator from a conversion of sugarcane to the extent to which it relate to such conversion only। conversion मतलब अगर सर आप क्या कर रहे हो,